जी, in geography unit number 2 is climate. ठीक है, we are going to review this chapter here. 4 climatic zones are here. ठीक है, so we are dividing it according to climatic features. We are dividing it under 4 climatic zones. Zone A, highland climate. Zone B, lowland climate, and Zone C, coastal climate. Zone D, arid climate. So when we are talking about highland climate, it means that we are discussing here the mountainous areas climate. Lowland climate is representing the plain areas climate. Coastal climate, it means that the 2 coastal areas, which are Makran coast and Sindh coast, and then the arid climate, which is representing the desert area. फिर इस चैप्टर के अंदर we are discussing 4 climatic elements. जब हम climatic elements की बात करते हैं तो we can consider temperature first and then rainfall. After that, pressure and winds. Pressure and winds are combined with each other. So first of all, we will talk about the temperature, and we will identify that what factors affecting temperature. क्योंकि जो अगर हम सीजन्स की बात करें, जैसे कि अभी प्रेजेंटली यहाँ पर समर सीजन है पाकिस्तान के अंदर, बट प्लेन एरिया के अंदर आपको जो टेम्परेचर है वो आपको अनप्लेजेंट टेम्परेचर मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं वार्म टेम्परेचर है, बट माउंटेनियस एरिया में प्लेजेंट टेम्परेचर मिलता है. So that is why you have to go to hill stations. आप वेकेशंस में जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर की वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें नंबर 1 के ऊपर लैटिट्यूडनल इफेक्ट, नंबर 2 इज कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, नंबर 3 इज एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, and number 4 is latitude and the angle of sun. इसके साथ ही साथ इसके साथ ही हम नेक्स्ट के अंदर देखें तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है रेनफॉल. When we are discussing rainfall, it means that we are talking about the sources of rainfall. पाकिस्तान के अंदर मेजर सोर्स ऑफ रेनफॉल इज मॉनसून विंड्स, राइट, एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉनसून. समर मॉनसून, जैसे कि अभी प्रेजेंटली इस टाइम पीरियड के अंदर हम समर मॉनसून से जो रेनफॉल है वो हम रिसीव कर रहे हैं. समर मॉनसून जो है इट स्टार्ट्स विद 15 जुलाई एंड एंड्स ऑन 15 सितंबर. And then the winter monsoon as well, जिसमें हमें light showers मिलते हैं, but major portion of rainfall we receive from the summer monsoon. Then comes on second type, which is convectional currents, which cause thunderstorms. The third type is relief rainfall. The fourth one is western depression, and the fifth one is tropical cyclones. So it means that we have total 5 sources of rainfall in Pakistan. फिर इसके साथ ही साथ हम रेनफॉल के अंदर इफेक्टिवनेस ऑफ रेनफॉल एंड देन द विंटर प्रेसिपिटेशन रिलेटेड टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे. फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी इसको भी डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोपोग्राफिकल फीचर्स के अगेंस्ट इफेक्ट्स ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी को पढ़ा था. बिल्कुल यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पर क्लाइमेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि हाउ climatic features affects our life and economy according to zone A, zone B, zone C and zone D. इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम नेक्स्ट के अंदर देखें तो हमारे पास आ जाती हैं क्लाइमेटिक हैजर्ड्स. क्लाइमेटिक हैजर्ड्स में नंबर 1 फ्लड्स हैं, एंड व्हेन वी विल डिस्कस फ्लड्स वी जस्ट get the information about the causes
And when we are discussing the causes, it means that we are distributing it under two subheading, which are natural causes and then the human causes. और इसके साथ ही साथ हम उसके इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स की भी बात करेंगे. Then the second climatic hazard is storms and the third one is droughts, जिसमें types हैं जो permanent हैं, seasonal हैं, invisible and then unpredictable droughts. उसके अंदर causes, then causes को further subdivide किया हुआ है, natural cause and then the human cause as well. After that, effects and the management, drought management की भी हम बात करेंगे. इस तरह से ये जो टॉपिक यूनिट नंबर 2 है क्लाइमेट, उसको हमने अपने चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस पर हम इन टॉपिक्स को अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी. इसीलिए मैं आपसे ये चीजें आपको रिवाइज करवा रही हूँ. सो यू मस्ट नो द सब टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंग टू दो सब टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर योर एग्जाम क्वेश्चंस. ये जो मैंने फिगर बनाए हुए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं जब हम रिवीजन करते हैं उसको भी, यानी इन वन साइड यू कैन इजीली गो थ्रू द होल टॉपिक. और इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम प्रिपरेशन के कौन से एरियाज के ऊपर हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अब मैं यूनिट नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करूंगी, अपनी न्यू स्क्रीन को शेयर करूंगी, यानी थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. सॉरी, जी बेटा आपको यूनिट नंबर 3 की स्क्रीन नजर आ रही है? बताएं जी बेटा. Yes, ma'am. Okay, so I'll give you review of unit number 3 which is natural resources. Natural resources के अंदर सबसे पहले we will discuss natural resources under two types, यानी non-renewable and renewable resources. When we will talk about the renewable resources, it means that these are continuous resources जिसके अंदर water, winds, waves and sunlight शामिल हैं. All these resources provided by अल्लाह, और ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, और ये हमारे पर अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि हमें ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर हमें मिलती हैं. ठीक है, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि हमें इसको किस तरह से संभालना है और किस तरह से इसको प्रिजर्व करना है. इसी के अंदर सेकंड जो हमारी चीज है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, वो है वो सस्टेनेबल हैं. जैसे सस्टेनेबल रिसोर्सेज विच आर vegetation, soil and landscape. When we are talking about the non-renewable resources, these are fossil fuels के अंदर शामिल होते हैं, और fossil fuels you know that these are the remains of animals and plants. Second type non-renewable resources के अंदर है mineral resources which are subdividing into metallic minerals and then non-metallic minerals. When we are talking about the renewable resources, उसके अंदर हमारा एक major source है water. So uses of water के हवाले से हम यहाँ पर further discuss करते हैं, और इसका weightage आपके chapter के अंदर काफी ज्यादा है, लेकिन इसको हम again divide करेंगे uses of water in 3 sectors. Number 1 is agricultural sector, number 2 is domestic sector, and number 3 is industrial sector. When we are talking about agricultural sector, it means कि we are talking about irrigation. ठीक है, irrigation को हम क्यों इस पर further discussion को हम expand करते हैं कि why we need irrigation. So we will talk about the needs and then the possibilities of irrigation, कि हम canal irrigation को किस तरह से बेहतर और extend further कर सकते हैं. Then under irrigation, we will talk about the types of irrigation which are subdivided under conventional methods or conventional systems and then modern systems.
and after that we will compare it under advantages and disadvantages. इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की भी बात करेंगे, जो कि आपने अर्ली स्कूल्स के अंदर पढ़ा होगा। तो उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन की है, डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। सो मैनी टर्म्स और डेफिनेशन के बारे में भी एक अलहदा से रिसोर्स बनाया हुआ है, आई शेयर इट विद यू। और उसमें ये जरूरी है बिकॉज इन एग्जाम क्वेश्चन यू विल फाइंड सम टर्म्स फॉर definition, or you have to write down the exact definitions जिसको हम geographical terms की कहते हैं, then you will get full number. So that is why I develop my resource on definitions and I'll share it with you and you can see in my channel as well. उसके अंदर इसके साथ ही साथ हम इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात करेंगे, क्योंकि हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अंडर दिस ट्रीटी we will discuss the dams and barrages as well, जो दो large dam हैं हमारे मंगला and तरबेला, तो उसके बारे में हम उसके description के हवाले से exam questions आपसे पूछे जा सकते हैं। Then comes on barrages and link canals, ये चीजें जो हैं ये आपसे मैप वर्क के अंदर पूछी जाएंगी और इसलिए आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैप वर्क की प्रिपरेशन करनी होगी। मैप वर्क के लिए भी एक मैंने स्किल बुक जो है वो प्रिपेयर की हुई है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन वी विल डिस्कस द टू रिवर सिस्टम्स, यानी रिवर सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो है इंडस सिस्टम एंड देन कम्स ऑन rivers of Balochistan. When we will discuss these two river systems, we will describe the importance of rivers of Pakistan as well. अब अगर इंडस सिस्टम को हम बात करते हैं तो अंडर इंडस सिस्टम वी विल डिस्क्राइब द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि आपको पता ही है कि ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के अंदर सतलुज, रावी, चिनाब और झेलम शामिल है, while in western tributaries Swat, Kabul, Tochi, Kurram, Gomal and Sob rivers are included. लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में जो आपको डिफरेंस नजर आता है वो ये है कि इन वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज दे कैरीज वाटर, मच वाटर ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ स्नो और इसकी वजह से आपको मॉनसून रेनफॉल की वजह से वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज और यहाँ इसमें आपको ज्यादा वाटर जो है मिलेगा समर सीजन के अंदर। एक और चीज भी इसके अंदर शामिल है कि ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो लार्ज रिवर्स हैं, जबकि वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज के अंदर काबुल के अलावा बाकी जो रिवर्स हैं वो आपके लार्ज रिवर्स के अंदर शामिल नहीं होते। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर वाटर एज अ रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये टॉपिक शामिल है। यहाँ मैंने आपके लिए 3 टॉपिक्स को ऐड किया है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर स्टोरेज एंड वाटर सप्लाई इश्यूज। ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं ये यू विल फाइंड क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स फॉर अंडर दीज टॉपिक्स। जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है आपको एग्जाम्पलरी क्वेश्चन यानी क्यू बॉक्स के अंदर जो क्वेश्चन दिया होता है वो इन टॉपिक से मोस्टली लिया जाता है, इसलिए मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी बाद में, ठीक है। इसके बाद अब मैं अपनी न्यू स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी जो है हमारा यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट नंबर 4 थोड़ा सा बेटा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
जी बेटा, आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? ये यूनिट नंबर 4 के बारे में है। कैन यू सी माय स्क्रीन बेटा? जी मैं सर, आ रही है ना सर। ओके बेटा, ये फॉरेस्ट का आपका चैप्टर है। फॉरेस्ट के चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने देखना है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को। सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के अंदर हम इसको सब डिवाइड करते हैं प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के अंदर। अंडर प्रोडक्टिव फॉरेस्ट the types of forests are alpine, coniferous, mangroves, tropical thorn forest and subtropical scrub forests. When we talk about the protective forest, उसके अंदर हमें जो चीज नजर आएगी वो है irrigated forest. इरिगेटेड फॉरेस्ट का मतलब जिसमें हम मैन मेड एफर्ट के थ्रू हम यहाँ पर इरिगेट करते हैं, जिसके अंदर छांगा मांगा का जो है हमारा फॉरेस्ट वो बहुत फेमस फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो बराजेस हैं उसके एरियाज के अंदर भी ये फॉरेस्ट लगाए जाते हैं। इन्हीं फॉरेस्ट को इन्हीं प्लांटेशन को रिवराइन भी कहते हैं या बेला फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि रिवराइन जो है वो रिवर्स के बैंक्स ऑफ रिवर्स और कैनाल्स के पर लगाए जाते हैं और बेसिकली इनका मकसद जो होता है वो आपके की लैंड डिजीजेस को कंट्रोल करना होता है, जिसको वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे अंडर फॉरेस्ट। जब हम यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स के अंदर फर्दर एग्जाम क्वेश्चन जो है वो फीचर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट के हवाले से पूछा जाता है। और फिर इसके साथ ही साथ जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट हमारी टाइप्स हैं उनमें एल्पाइन के फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं, यानी स्टंटेड ग्रोथ, रूट्स स्प्रेडिंग ऑन थिन सॉइल, नॉर्मली अपवर्ड ब्रांचेस। इसी तरह कॉनिफरस के फीचर्स एवरग्रीन स्पीशीज लाइक एवरग्रीन स्पीशीज हैं, कॉनिकल इन शेप हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, स्मॉल थिक लेदरी नीडल शेप्ड लीव्स हैं। And then the mangroves जो कि generally height 3 meters, broad leaves with drip tips, leathery texture, roots spread into sea water. So मैंने यहाँ आपको briefly features जो हैं वो बताए हैं, क्योंकि ये जो question पूछा जाता है वो मैक्सिमम 3 नंबर का फीचर्स के हवाले से क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर फीचर्स को हाईलाइट कर दिया है। फिर हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं, यानी मेन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो टिम्बर है। टिम्बर एज यू नो दैट द वुड व्हिच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, एंड द सेकंड यूज इज फ्यूल वुड, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल। And then the minor product as well, जो minor product हैं these are also important products। इसमें रेजाइन है, मजारी है, है। इसके बाद हम डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, एंड अंडर डिफॉरेस्टेशन वी विल टॉक अबाउट द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, and then we will talk about when we will talk about the effects। इसका मतलब क्या है कि we are talking about environmental loss and then exposed soil। जब हम environmental loss की बात करते हैं तो इसका मतलब species extinction की बात करेंगे, air pollution की बात करेंगे and habitat loss की बात करते हैं। and when we will talk about the exposed soil तो इसके मतलब का मतलब ये है कि हम यहाँ पर वाटर इरोजन और विंड इरोजन, और फिर इसके साथ ही साथ हमारा इंक्रीज सरफेस रन ऑफ भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है सिल्टेशन। सिल्टेशन क्या है? सिल्टेशन इज अ मिक्सचर ऑफ मड एंड सैंड, जो कि वाटर इरोजन की वजह से जो सिल्टेशन है it is a big threat for the dams, क्योंकि ये डैम्स के अंदर जमा होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से capacity of dam is also decreased, और इसकी वजह से disrupt water supply as well, क्योंकि जाहिर है कि आपकी जो capacity है वो कम होगी तो उसकी वजह से disruption start हो जाएगी।
इसके साथ ही साथ आपको इसकी वजह से हमें फ्लड्स को भी फेस करना पड़ेगा, यानी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंक्रीज रन ऑफ सरफेस रन ऑफ की वजह से फ्लड्स जो हैं वो जाहिर है हमारा जो रिजल्ट होगा वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ फूड की सूरत में हमें मिलेगा। जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एफॉरेस्टेशन भी शामिल होता है। यहाँ पे हम सिलेक्टिव कटिंग की भी बात करते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक भी शामिल है, सिलेक्टिव कटिंग एंड नॉन सिलेक्टिव कटिंग। और इसमें जो फर्दर चीजें टाइप्स हैं जो टेरेसिंग, फार्मिंग और काउंटर फ्लोइंग की भी बात की हुई है। इस तरह से ये जो चैप्टर है यानी यूनिट नंबर 4 जो है वो हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर मैं अब आपके साथ अपनी न्यू स्क्रीन शेयर करती हूँ जो कि मेरी है चैप्टर नंबर 5 के बारे में। जी मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मिस आ जी, मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज का चैप्टर जो है ये एक डिफिकल्ट चैप्टर है। इसको कवर करने के लिए थोड़ी सी हमें टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, और टेक्निक्स को मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो टेक्निक्स क्या हैं, यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने इस फिगर के अंदर आपको बताया है, यानी सब टॉपिक ए, जिसको मैंने इस चैप्टर को 3 डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड, सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। नंबर 2 सब टॉपिक माइनिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स का के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कैसे माइनिंग कर सकते हैं, एंड माइनिंग, हाउ माइनिंग कैन हेल्प अस टू डेवलप आवर इकोनॉमी। इसके साथ ही साथ पार्ट सी यानी सब टॉपिक सी है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग। सो अगर हम इस तरीके से अपने चैप्टर को कवर करेंगे तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। अब हम पहले यानी सब टॉपिक ए की बात कर लेते हैं कि हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स के यहाँ पर 3 मेथड्स बताए हुए हैं। एक तो हॉट मैग्मा, नंबर 2 evaporation of silica bearing water, and number 3 is after break of volcanic rocks. अब इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जो डिटेल है वो आपने पढ़ी होगी, लेकिन आप सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। It then comes on mining process, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पार्ट बी की बात की थी, तो अब हम माइनिंग की यहाँ पर बात करते हैं कि माइनिंग प्रोसेस क्या होगा। हाँ जी, किसको प्रॉब्लम हो रही है सुनने में बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इसको तमीज के साथ सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा, वरना तो मुझे पता है मैं आपको क्लास से एग्जिट करवा दूंगी। प्लीज, माइनिंग प्रोसेस के अंदर 2 mining process are used in Pakistan. Number 1 is open cast mining and number 2 is underground mining. So when we will talk about underground mining, it means that we are talking about adit mining and then shaft mining. इसके बाद हम यहाँ पर मिनरल्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, यानी मेटालिक मिनरल्स एंड देन नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को यहाँ पर मैंने लिस्ट किया हुआ है, यानी आयरन ओर, कॉपर, क्रोमाइट, मैग्नीज, गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर मेटालिक मिनरल्स। एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर कोल, सल्फर, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल एंड क्लेज। अब यहाँ पर जो एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है कंपैरिजन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, और इसके बाद इसके साथ साथ यूजेस, ठीक है, यानी यूजेस ऑफ दीज मिनरल्स एज वेल। इट मे बी मेटालिक, इट मे बी नॉन मेटालिक, और एग्जामिनर आपको समटाइम्स दे विल गिव the name minerals and ask the uses, और sometimes आपको ऐसा किया होता है कि आपसे वैसे ही लेबल करके पूछा जाता है कि मेटालिक और नॉन मेटालिक के यूजेस बताए जाएं। इसमें लाइमस्टोन जो आपकी
है उसको, लाइमस्टोन जो हमारी नॉन मेटेलिक मिनरल है, उसकी जो माइनिंग प्रोसेस है वो क्वेरिंग कहलाता है, और इसके बारे में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम सब टॉपिक बी की बात यहाँ पर करते हैं, यानी माइनिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल यूज ऑफ मिनरल्स, इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल यूज, एंड देन द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। इसके साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, as well as increase in GDP. So all these points comes under economic development, कि किस तरह से माइनिंग सेक्टर जो है वो हमारे इन एरियाज को सपोर्ट करते हुए it is increasing our GDP. Then we will discuss the name of organizations, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माइनिंग के हवाले से काम कर रही हैं। उनमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, and then Pakistan Mineral Corporation, and then Gemstone Corporation of Pakistan. So these are three important organizations जिसको यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट किया है। Then at the end you will talk about the sustainable development, और sustainable development के अंदर जो है यानी application of science and technology and strictly checked of disadvantage of toxic substances. ये substantial development के हवाले से आपसे क्वेश्चन 6 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्यू बॉक्स का क्वेश्चन होता है, आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा, यू आर फेमिलियर विद इट। इसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके बाद हम पार्ट सी की बात कर लेते हैं। पार्ट सी के अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ माइनिंग। When we will talk about the problems of mining, it means that we are discussing lack of finance, I'll answer you, Abdul Rafi, after completing it, beta. Thank you. Problems of mining: lack of finances and technical experts, then inaccessible mineral deposits, and after that low priority. Low priority, it means that we are discussing the policies of government here. Then we will discuss effects of mining. Effects of mining के अंदर 3 important effects are यानी air pollution, and then noise pollution, after that water pollution. Then we will discuss the protective measures, ठीक है, यानी special precautionary measures। उसके अंदर सबसे पहले आता है जिसमें शामिल होता है fill depressions, proper facilities for miners and water treatment plants. So in this way we will complete our chapter which is related to mineral resources, and it is chapter number 5. So यहाँ मैं अपनी